Good afternoon, students. Today we have to start multiplication and division of the fractions. This is second part of the video. So we have to cover the multiplication and division, the basic concepts of it. So let's start multiplication and division of fractions. Multiplication. Students, as you know, in addition and in subtraction, we have to find out the LCM of denominators if the denominators are different. But if the denominators are same, we have to write down the same denominator in both addition as well as in subtraction. But in multiplication, what you have to do, suppose the number is 17 upon 15. Suppose this is the number and you have to multiply it with 3. No denominator is given here. The 3 is the whole number which is mentioned here. What you have to do, you have to write the denominator of it. 17 upon 15 multiplied by 3 upon 1. If the whole number is given, that means the denominator of that number is 1. Now in multiplication, what you have to do, you have to see the upper number of one fraction and lower denominator of another fraction. Like this, 17 and 1, 3 and 5. Opposite numerator of one fraction, denominator of another fraction. If they are coming in same table, then you have to cut it with that number. Suppose 17 and 1 remain 17. 15 and 3, they both come in the one table, that is 3. 15 और 3 जो है ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल है. 3 कितने ज़र 3 होता है? 3 1s are 3 and 3 5s are 15. Right? So students, now 17 and 1. So 17 and 1 remain same because 1 से तो सभी numbers कट जाते हैं. So now we multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So 17 1s are 17 and 5 1s are 5. So this is your answer. If we are using same fraction for division, what happens? See. Division, 17 upon 15 divided by 3. Here also I have written 3 as a whole number. Now what is the denominator of 3? Again 1 is the denominator. 17 upon 15 divided by 3 upon 1. बेटा डिवीजन को हमेशा पहले मल्टीप्लाई में ही कन्वर्ट किया जाता है. दैट इज द थिंग. 17 अपॉन 15 डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई. और ये जो आपकी सेकेंड फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा. 1 अपॉन 3 उल्टी हो जाती है. नाउ अगेन यू हैव टू डू सेम एज इन मल्टीप्लिकेशन. अब जैसा आपने मल्टीप्लाई में किया था कि वन फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और दूसरी का डिनोमिनेटर, इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर. सी इज देयर एनी नंबर हु कम्स इन सेम टेबल? नो. 17 और 3 ये दोनों क्या किसी सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते. 15 और 1 से तो हर नंबर मल्टीप्लाई भी हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है विद सेम नंबर. नाउ अभी हम क्या करेंगे? सीधा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 17 1s are 17 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 3s are 45. So this is the answer. See the difference between the answer. Here the answer is 17 upon 5 and here the answer is 17 upon 5
and here the answer is 17 upon 45. This is the difference. Now we can take another one example. Suppose 21 upon 30 multiply by 5 upon 7. Suppose this is the example you have to find out. बेटा आप देखिए 21 upon 30 को मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 7. अगर आप इसका न्यूमिनेटर ले रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर, क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? यस, ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं. 7 1s are 7 और 7 3s are 21. बेटा जिस टेबल से आप डिवाइड करते हैं वो टेबल सामने नहीं आता. सपोज आपने इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड किया. 7 1s are 7, 1 भी दिखा और 7 भी दिखा आपको इसमें. 7 3s are 21, 3 भी दिखा और 21 भी दिखा, लेकिन हमने किससे डिवाइड किया? 7 से. ये जो आपकी नोटबुक चेक करता है टीचर या फिर आपको खुद को पता होता है कि हमने किस टेबल से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया है, अदरवाइज ये नंबर दिखेगा नहीं यहाँ पर. नाउ कम टू दिस न्यूमिनेटर एंड दिस वन डिनोमिनेटर. 5 30, क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? अगेन इन 5. अब 5 के टेबल से हम इनको डिवाइड करेंगे, लेकिन 5 का टेबल दिखेगा नहीं. 5 कितने जार 5 होते हैं? 5 1s are 5. 5 कितने जार 30 होते हैं? 5 6s are 30. नाउ द आंसर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए. 3 1s are 3, 6 1s are 6. लेकिन बेटा देखो अभी यहाँ पर एक और आ रहा है, एक और चीज निकल के आ रही है. दिस न्यूमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर अगेन कम्स इन सेम टेबल, दैट इज ऑफ 3. ये दोनों अभी भी 3 के टेबल में आते हैं. तो आपको जो मैंने पहली वीडियो में समझाया था रिड्यूस द फ्रैक्शन, यहां पर वो हो जाएगा. ये दोनों फिर 3, ये आंसर भी सही है, दिस इज ऑल्सो द आंसर. लेकिन अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो इसका क्या आंसर आता है? 3 के टेबल से ये कट जाएगा. 3 1s are 3, 3 2s are 6. योर आंसर इज 1 upon 2. इज इट क्लियर? सो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी आंसर सही है. सपोज वी आर यूजिंग सेम नंबर्स हियर. 21 upon 30 divided by 5 upon 7. सेम आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है. वो कैसे चेंज होगा? दूसरी वाली फ्रैक्शन को उल्टा करके, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. मल्टीप्लाई, ये वाली फ्रैक्शन ऊपर, 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा. सो अब आप ये देखिए 7 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता. 5 और 21 आपस में डिवाइड हो सकते हैं किसी एक टेबल में? नहीं होते. नाउ व्हाट कैन वी डू? वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. क्योंकि कोई भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में नहीं करता और इसका डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर आपस में नहीं करता. नाउ व्हाट इज द आंसर? 7 1s are 7 and 7 2s are 14. 147, 0 3 5s are 15. दिस इज द आंसर. अभी भी ये आपका सिंपल आंसर. नाउ सी हियर द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स. इसका आंसर यहाँ पर 147 अपॉन 150 और यहाँ पर आंसर इसी का 1 upon 2 या फिर 3 upon 6. This is the difference between multiplication and division of fraction. So this is volume 2 of that video, topic fraction. Now your fraction is totally finished. Thank you so much.